Hello everyone, welcome to the fifth session of your PYQ discussion. In this session, we will be starting with the topic of percentages. So, this is the first class for your percentage PYQ discussion, and before discussing the concepts and before solving the question, what we will do is we will analyze this topic, how many questions will come from this topic, what is the main trend, and after solving, we can see whether this topic was tough or not, and we can see what are the major themes of this topic. Okay, so this is for CSAT 2024. In this, you got 3 questions from percentages. In CSAT 2023, you did not get a direct question, but further percentage applied questions, that is percentage used in simple interest, compound interest. These questions you are getting. So this means not only for percentages, but if you are preparing for profit and loss topics also, if you are preparing for, let's say, averages, allegations also, percentage concept can be applied there, and thus it also becomes a basic for your other topics. Okay, so even if paper is not asking you direct question of this topic, they can ask you applied question. Then you have in 2022, there were I think 3 questions you can see, and in 21 also questions have been asked from this topic, 20 also, 2019 also, 2-3 questions have been asked. So this is an average कि every year 2-3 questions are being asked from this topic. ठीक है, first thing we have concluded is इस topic से 2-3 question पूछे जा सकते हैं easily. Second thing we have concluded is direct question नहीं भी आएंगे तो percentage का use simple interest, compound interest and other profit loss topics वगैरह सब में है. So this is not one of those topics which you will leave. This is an important topic for us. All right. Now, अब हम question discussion करेंगे. So we will see what is the level of questions that is being asked in these topics. क्या बहुत tough question पूछे जाते हैं इस topic से या easy है या doable है? What is the level of question asked? ठीक है? So that we know किस level की preparation करनी है. ठीक है? First question is P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R's salary. By how much percent is R's salary more than P's salary? ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं पता, ऑल वैल्यूज आर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ऑफ वन एंड अदर, तो जो एक बेस वैल्यू होती है यू कैन टेक इट एज 100. It makes your question very very easy. For example, P की सैलरी है Q के टर्म्स में, Q की सैलरी है R के टर्म्स में. So I will take R's salary as ₹100. Q's salary is 20% lower than R's salary. That means Q की सैलरी कितनी हुई? 20% lower. 100 minus 20 by 100, 80 आ गया. Now, P's salary is 20% lower than Q's, 20% lower than 80. 80 minus 20 by 100 of 80. That means 80% of 80. 64 आ गया. So question क्या है? By how much percent is R's salary more than P's salary? Than P's salary. अब हमें ये पता है कि R की सैलरी है 100, P की सैलरी है, R की सैलरी क्या है 100, P की सैलरी है 64. सो R माइनस P, ये कितना आ गया 36. R सैलरी मोर देन P सैलरी, देन P, जो देन के बाद होता है इसके कंपैरिजन में फाइंड आउट करना है. सो ये डिनोमिनेटर बनता है 36 divided by 64 multiply 100. This will be your answer. You can see ये 50% से ज्यादा है, 50% कितना होगा 32, तो approximately your answer will be option B 56.25. Okay, without solving approximate calculation से भी you can check. ठीक है, so option B will be your answer.
अभी देखा इतना कुछ मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप r को 100 अज्यूम कर लोगे, कैलकुलेशंस विल बिकम सो इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही एवरेज क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन परसेंटेजेस का क्वेश्चन, कंपैरिजन है, वेरी एवरेज, नथिंग न्यू। A number mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. Again, I told you, when you do not have a particular number, you assume it. Let us assume 100 because it will make our calculations easy. Number is mistake क्या हुई? Divided by 4. So 100 divided by 4, 25. This was the mistaken number. Instead of multiplying, actual क्या होना चाहिए था? 100 multiplied by 4, 400. What is the percentage change in the result due to this mistake? What is the percentage change? Change कितना है? 400 minus 25, 375. In the result, result कितना होना चाहिए था? 400, 375 divided by 400 multiply by 100. ऑब्वियसली देखो 400 का 90% कितना होता है? 360. ये 90 से तो ज्यादा है, दैट मीन्स 93.75. ऑप्शन डी विल बी योर आंसर. सो अगेन नथिंग टू हार्ड एंड फास्ट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो. तो अभी हमने क्या एनालाइज किया कि परसेंटेज के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज का क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q, R. 3 आर्टिकल खरीदे. फर्स्ट आर्टिकल इज P, सेकंड इज Q, थर्ड इज R. फॉर रुपीज 3330. ये 3330 रुपीज में 3 आर्टिकल खरीदे. P का कॉस्ट है 25% मोर देन R. R का कॉस्ट है 20% मोर देन Q. ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P? अब अगेन आई टोल्ड यू, जब बेस गिवन नहीं है तो अज्यूम कर लो. P की कॉस्ट है R की टर्म में, R की कॉस्ट है Q की टर्म में, तो Q को अज्यूम कर लो 100. ठीक है, R की कॉस्ट कितनी आएगी? 20% मोर देन Q, 120. ठीक है, P की कॉस्ट कितनी आएगी? 25% मोर देन R. 25% मीन 14. 14 by 120 ऐड करना है. 120 प्लस 30, 150. ठीक है, P is 150, R is 120, Q is 100. अब ये देखो इनका टोटल क्या हुआ? टोटल ऑफ P प्लस Q प्लस R की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? क्या है यहाँ से? 150 प्लस 120, 270 प्लस 100, 370. दिस इज द टोटल कॉस्ट. बट एक्चुअल में तो गिवन है कि कॉस्ट इज 3330. ठीक है, सो दैट मीन्स जो ये 370 है, ये किसके? 3330 के प्रोपोर्शनेट है. यू हैव टू फाइंड आउट 150. कॉस्ट ऑफ P निकाली है ना, 150 किसके प्रोपोर्शनेट है? सिंपली 370 डिवाइड बाय 3330 इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाय x. x फाइंड आउट करना है आपको. ठीक है, सो ये देखो 37, दिस विल बिकम व्हाट? 9. X is what? 9 multiply 150, 1350. This will be your answer. ठीक है, ये कंसेप्ट कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आई से इफ, ये देखो P is 1, Q is 2. ये हमने फाइंड आउट कर लिया. मैंने बोला P प्लस Q तो 8 है. ठीक है, तो ये क्या है? ये तो परसेंटेज के टर्म्स में था ना, तो काइंड ऑफ रेशो हुई ना. यू विल से, लेट्स से P, मैंने बोला P प्लस Q है 9. ठीक है, सो यू विल से यहां से तो P प्लस Q 3 आ रहा है. बट तो अगर 3 इज प्रोपोर्शनेट टू 9, 3 इज प्रोपोर्शनेट टू 9, तो 1 किसके प्रोपोर्शनेट होगा? दैट मीन्स P की वैल्यू 3 होनी चाहिए, Q की वैल्यू 6 होनी चाहिए. देखो 1:3 करें. ओके, so this is what you had to do in this question. You can also take Q as X, Y and so on, but ये आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा टफ कर देगा. Now you have CSAT 2022
Question: the increase in price of a certain item was 25%, then the price was decreased by 20% and again increased by 10%. See, 25% मतलब सबसे पहले कुछ भी प्राइस था उसको इंक्रीज कर दिया 25%, मतलब इंक्रीज ऑफ 25% इज 25/100 इज 1/4. उसके बाद उस आर्टिकल के प्राइस को डिक्रीज कर दिया 20%, मतलब 1/5. सबसे पहले तो ये परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आप एक आर्टिकल के प्राइस को, जैसे ये P को N/D, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इंक्रीज करो, ठीक है. देन आप उसको N/N+D डिक्रीज कर दो. फर्स्ट यू इंक्रीज इट, देन यू डिक्रीज इट बाय दिस. जैसे यहाँ पे था 25%, मतलब 1/4 से हमने इंक्रीज कर दिया. आफ्टर दैट 1/1 + 4, 1/5, 20% से डिक्रीज कर दिया. फाइनल प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा. सो नाउ इफ आई से कि 100 रुपीज की कमोडिटी को I have increased it by 1/3, 33.33%. How much should I reduce so that वापस से 100 हो जाए? वो 1/3 से आपने इंक्रीज किया तो 1 बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 1 + 3, 1/4 से डिक्रीज. गॉट इट? अब यहां पर भी इस क्वेश्चन में देखो यही है. एक आर्टिकल को पहले हमने, ये प्राइस है, 1/4 से इंक्रीज किया, 1/5 से डिक्रीज कर दिया. दैट मीन्स फाइनली तो ये P ही बन जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%. What is the resultant increase in price? Only 10% will be the increase. Option B will be my answer. So this question, अगर किसी को ये पता है तो सॉल्व भी नहीं करेगा. Will not even take 20 seconds. ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने जितना टाइम लगेगा इसमें. Now next question is what? चल ये देखते हैं. When 70% of a number x is added to another number y, sum becomes 165% of the value of y. 70% of x is added to another number y. Sum becomes 165% of the value of y. ठीक है. When, अब चलो पहले इसी स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं. वी नो ऑप्शंस को देख के कि हमें कंपैरिजन बताना है. ठीक है. सो पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो यू नो 70/100 of x is equal to 165/100 of y minus y. So this means 70/100 of x is equal to 65/100 of y. यहां तक तो आ गया. अब आप एक चीज देखो, लेट्स से मैं बोल रही हूँ 2x is equal to 7y. तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा? x को x बड़ा होगा या y बड़ा होगा? देखो, x एक नंबर है, उसको आप छोटे नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड y एक नंबर है, उसको आप इतने बड़े नंबर 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब जाकर ये नंबर्स सेम बन रहे हैं. ठीक है. सो दैट मीन्स y जो है इट विल बी स्मॉलर देन x. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि ये 5 है और ये 7 है, ठीक है, यू हैव टू मेक इट, लेट्स से ये 5 है एंड ये 10 है, आपने इसको 20 बनाना है, तो आप 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? 4. पर 10 ऑलरेडी बड़ा है, उसमें तो एक छोटा नंबर ही मल्टीप्लाई होगा. ठीक है. सो यू कैन से दैट अगर छोटा नंबर मल्टीप्लाई करने से
किसी एक बड़े नंबर के इक्वल हो रहा है, दैट मीन्स x विल बी बिगर देन y। यहां पर देखो x में कितना मल्टीप्लाई किया हमने, 70%, y में सिर्फ 65 में ही काम चल गया, दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x। ऑब्वियसली y x से बड़ा होगा, तभी उसमें सिर्फ 65 मल्टीप्लाई करके भी सेम नंबर आ गया जो x में 70 मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है। दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन x, फर्स्ट थिंग तो ये। सो ऑप्शन सी इज गॉन, ऑप्शन डी इज गॉन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज when 60% of a number is added to another number z, 60% of is added to another number z, then sum becomes 165 by 100 of z. This means I can say 60 by 100 of x is equal to 65 by 100 of z. अब देखो z में बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ा, दैट मीन्स ये नंबर छोटा होगा ना इन इटसेल्फ, सो z इज लेस देन x, z इज लेस देन x, x is less than y. Option A will be your answer. Okay, so simple. Next is two candidates x and y contested an election. 80% of voters cast their vote and there were no invalid votes. There was no nota option. सिर्फ मतलब अगर आप वोट कास्ट कर रहे हो तो आप या तो x को वोट दे सकते हो या y को वोट दे सकते हो, आपके वोट इनवैलिड भी नहीं हुए, आप नोटा को भी वोट नहीं दे सकते। सो x गॉट 56% ऑफ द वोट्स कास्ट एंड वन बाय 1440। अब देखो अगर x को 56% वोट्स मिले, दैट मीन्स y को ऑफ द वोट्स कास्ट, दैट मीन्स y को कितने वोट्स मिले होंगे, 100 माइनस 56, 44% वोट्स। इतना क्लियर है। अब देखना x माइनस वाई क्या है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, x माइनस वाई इज व्हाट, 12%, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स x माइनस वाई, x won by 1440 votes, that means 12% of votes cast is equal to 1440, ठीक है। तो यहां से आई कैन से कि वोट्स कितने कास्ट हुए, यहां से वोट्स कास्ट इज व्हाट, 100 मल्टीप्लाई 120, 1 टू 12,000, ठीक है। वोट्स कास्ट है 12,000। क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अब ये देखो वोट्स कास्ट है 12,000, ऑल्सो वोट्स कास्ट कितने हैं, 80% ऑफ द वोटर्स, दैट मीन्स टोटल वोटर्स का 80% इज इक्वल टू 12,000। टोटल वोटर्स कितने हुए, 15,000। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। सबसे पहले x 56% वोट से जीता, x को 56% वोट्स मिले, दैट मीन्स x इज 56 तो y इज 44। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12%। वो 12% किसके इक्वल है, 1440 वोट्स के। यहां से हमने क्या निकाल लिया, वोट्स कास्ट 12,000। वोट्स कास्ट पता चल गए, बट ये पता था ये वोट्स कास्ट क्या है, 80% ऑफ टोटल वोट्स, तो टोटल वोट्स यहां से आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 50% आर गर्ल्स, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म से सॉल्व होता है, ठीक है। सो अगेन हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, वी विल कंसिडर टोटल स्टूडेंट्स 100, ठीक है। 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, ये लो इंडिया, और फॉरेनर्स, इंडिया में है 60%, फॉरेनर्स कितने हो गए 40।
50% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, गर्ल्स है 50, दैट मीन्स बाकी बॉयज कितने हो गए 50, ठीक है। 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इंडियन स्टूडेंट्स में से 30%, 30/100 ऑफ 60, 18, ये गर्ल्स हो गए। इंडियन गर्ल्स कितनी होगी 18। व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, सबसे पहले आप ये देखो, अगर इंडियन स्टूडेंट्स जो गर्ल्स है वो 18 है, टोटल गर्ल्स कितनी थी 50, सो फॉरेन स्टूडेंट्स गर्ल्स कितनी होंगी 50 माइनस 18, 32, फॉरेन स्टूडेंट्स में से गर्ल्स कितनी हुई 32, तो बॉयज कितने हुए टोटल 40 माइनस 32, 8। Question is, what percentage of foreign students are boys? So boys divided by foreign students multiplied by 100. 8/40, 1/5 multiplied by 100. 20% of foreign students are boys. ठीक है? Again, not a very complicated question. It's just that इसमें दो पैरामीटर्स थे। फर्स्टली आप स्टूडेंट्स को इंडियन और फॉरेनर के बेसिस पे डिस्टिंक्शन कर रहे हो, देन उनको गर्ल्स और बॉयज के बेसिस पे डिस्टिंक्शन कर रहे हो। नाउ P scored 40 marks more than Q in the examination if Q scored 20%, 10% less than P। अब देखो इसमें क्या है, P और Q के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है, मार्क्स के बेसिस पे भी दिया हुआ है कि P माइनस Q इज व्हाट 40 मार्क्स। एट द सेम टाइम Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, दैट मीन्स अगर आप P को P ही मानो, Q स्कोर 10% लेस, Q का कितना आया 90/100 ऑफ P, ठीक है, 10% लेस मतलब 90% हो गया ना, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंट ऑल्सो इट इज गिवन कि इट्स Q स्कोर 10% लेस, ठीक है। तो ये पूछा, ये देखो यहां से आप इसको इक्वेट कर सकते हो, 10% ऑफ P इज इक्वल टू 40 मार्क्स, ठीक है। दिस मीन्स P के कितने मार्क्स आए 400, अगर P के मार्क्स 400 है तो P माइनस Q क्या है 40, P के Q से कितने 40 मार्क्स ज्यादा थे, Q के कितने हो जाएंगे 360, 400 माइनस 40, ऑप्शन ए विल बी योर आंसर, ठीक है। सो अगर परसेंटेजेस के बेसिक कंसेप्ट्स आपने किए हैं, क्वेश्चन आर नॉट डिफिकल्ट और बेसिक से ऊपर कुछ पूछा नहीं है। ऑल राइट, so let's see the next question that we have. In an adult population, 40% men, 30% women are married. ठीक है, for example, let me say 100 men है, तो out of this 40 men are married. ठीक है, if there in a population there are 100 men, 40 men are married, 30% women are married. So that means if there are whatever women are there, 30% of women will be married. ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, what is the percentage of married adult population? सबसे पहले अगर मुझे married adult population निकालनी है, can I say it is married men plus married women divided by total men plus women जो भी adult population में है, multiply by 100, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मैरिड मैन टोटल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन। अब देखो, नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन, किसी के मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, एंड नो वुमन मैरीज मोर देन वन मैन, तो विमेन के भी मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोर्स। बेसिकली जितने भी मैन वुमेन है ये एक पेयर में है, ऐसा नहीं है कि एक पेयर में जैसे वुमेन मैरी हुई एंड देन शी गॉट विडोड, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ऐसा पेयर होगा, नो, men and women are married men is always in a pair with married women, also सिर्फ एक ही women के साथ पेयर में है। so that means इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब था कि आप ये चीज समझो
कि जितने भी मेन हैं उसका 40% ऑफ मेन इज जो मैरिड है, विमेन कितने मैरिड है 30%। ये आपस में इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल होंगे तभी इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स बनाएंगे जिसमें नो विमेन विल बी लेफ्ट, नो मेन विल बी लेफ्ट और किसी के मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होंगे। सो 40% ऑफ मेन इज इक्वल टू 30% ऑफ विमेन। तो कैन आई से मेन इज इक्वल टू व्हाट 3/4 ऑफ विमेन। ओके, 1 man is equal to 3/4 of a woman. Next thing is what is the percentage of married men? अच्छा, परसेंटेज निकालनी थी। सबसे पहले मैरिड मेन हमने किया था ना परसेंटेज के लिए, मैरिड मेन प्लस मैरिड वुमेन डिवाइडेड बाय टोटल मैन प्लस वुमेन मल्टीप्लाई बाय 100। यही तो होता है परसेंटेज का फॉर्मूला। सो मैरिड मेन इज व्हाट 40/100 ऑफ m प्लस 30/100 of w divided by m plus w multiply by 100। इतना हो गया। अब m की जगह कैन आई पुट 3/4 of w? So can I say this is what 4/10 4/10 multiply 3/4 of w plus 3/10 of w divided by मैन प्लस वुमेन। मैन की जगह फिर से 3/4 ऑफ वुमेन पुट करो, 3/4 ऑफ वुमेन प्लस w, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहां से ये देखो 3/10 ऑफ वुमेन 3/10 ऑफ वुमेन सेम चीज आ रही है। सो दिस विल बी व्हाट 6/10 w डिवाइडेड बाय 3/4 ऑफ w प्लस 4। सॉल्व करो इसको, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 100। This got cancelled out। 6/10 स्टेटमेंट फ्रैक्शन क्या आई, यहां देखो फ्रैक्शन विल बी व्हाट 6/10 डिवाइडेड बाय 7/4। ठीक है, यही है ना। सो 6/10 मल्टीप्लाई 4/7, साथ में 100 है, मल्टीप्लाई 100 कैंसल आउट। This means this will be what 640 divided by 7। This means 240 divided by 7। इसको करो 34 2/7। This will be your answer। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे ये ट्रिक थी 40% मेन 30% विमेन के इक्वल होंगे। मेन को आप विमेन के टर्म्स में फाइंड आउट कर लो, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन 2019 का क्वेश्चन है A and B are two heavy steel blocks। B is placed on top of A। ठीक है, weight increased by 60%। Let's say A का weight था 100। जब हमने A plus B रख दिया तो weight increased by 60%, A plus B हो गया 160। That means B का weight कितना आ गया 60 kg। ठीक है, how much weight will reduce with respect to total weight of A plus B? इसके रिस्पेक्ट में कितना वेट रिड्यूस होगा इफ B is removed? B को रिमूव कर दिया तो कितना वेट रिड्यूस होगा 60 kg। I remove B, that means I am reducing 60 kg। 60 kg in respect of A plus B 160 multiply by 100। This will be my answer। ठीक है, एनीथिंग टफ इन दिस? सो अच्छा 60 kg डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैसे करें हम? यू हैव अगेन सॉल्व इट। 300 divided by 8, then firstly you can say this is 3 is 24। without further solving also I can say 37.5। ऑप्शन डी विल बी माय आंसर। चाहे आप फर्दर सॉल्व नहीं भी करो, फर्स्ट तो आपको पता चल गया ना, जो आप 300 को 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कि फर्स्ट डिजिट विल बी 3 ओनली। ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन डी है जो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ रनर was crossing the 12 kilometer mark
She was informed that she had completed only 80% of the race. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. 12 kilometer mark is 80% of race. How many kilometers was the runner supposed to run? That means total race कितनी थी? Option B is your answer. Clear? Now let's move on to the next question. इसमें क्या है? Raju has 9,000 with him. He wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of amount required. आपके पास 9,000 rupees है, but that is only 75%. इसका मतलब क्या हुआ? 9,000 अगर 75% of amount required, ठीक है? So can I say this is what? 3/4. So 3 यहाँ से 3,000. That means you need amount 12,000 rupees. राजू के पास कितना है? सिर्फ 9,000. Therefore he borrows 2,000. 9,000 के ऊपर उसने 2,000 बोरो कर लिया. That means उसके पास 11,000 है. तो आंसर बताओ. राजू still does not have enough money to buy the handset. Obviously 12,000 चाहिए. बोरो करके भी 11,000 है. So Raju still does not have enough money to buy the handset. Okay, option A will be your answer. चलो next question देखें. In an examination, A has scored 20 marks more than B. So एक एग्जाम है, A ने B से 20 marks ज्यादा स्कोर किए हैं. If B has scored 5% less. अब देखो कितना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन P एंड Q वाला. P minus Q 40 था एंड P एंड Q में डिफरेंस था 10% का. B has scored 5% less marks. That means अगर A के मार्क्स कुछ भी है, B के कितने? 5% लेस, 95% ऑफ A. तो B के मार्क्स कितने हैं? 5% किसके इक्वल हुआ? 20 मार्क्स के. That means if 5/100 ऑफ टोटल मार्क्स जो A के हैं, it is equal to 20. ये मतलब हुआ how much has B scored? B के मार्क्स पूछे गए हैं. So A के मार्क्स कितने आए? 4. A's marks are 400. A minus B 20 का गैप है. अगर A के मार्क्स 400 है, B के 380. बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था. एग्जैक्ट सेम, स्टेटमेंट भी सेम, ओनली numbers were changed. So that is why I always say कि PYQ जो एनालाइज करना, PYQ के कंसेप्ट याद करना. PYQ सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें क्वेश्चन रटना है. PYQ इसीलिए कि हमें पता हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, उससे फॉर्मूलाज हम रिवाइज कर ले, थीम्स रिवाइज कर ले. परसेंटेज आता है तो परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन वाले. ये क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए PYQ इंपॉर्टेंट है. ठीक है? सो डू नॉट मिस दीज. एंड ऑल राइट. So in the next session we will do further PYQs. I think we have done here till year 2019. I have covered till 2019. Till 2019 your percentage PYQ have been done. In the next session we will move on further 2018 से 2011 तक all the PYQs we will do. Thank you so much for attending the session.